Good afternoon, students. Today we will start second chapter of economics, people as resource. And in this slide you can see introduction and economic activity. Introduction to people as resource. Economic and non-economic activities. Division of economic activities between men and women. Classification of economic activities. People as resources, human capital, population, health, people as resource, people as resources, education and unemployment. These things we are learn in this chapter. Introduction to people as resource. The phrase as a resources refers to a country's working force with respect to their existing skills and abilities. A country's citizens are its asset. This happens when the skills of the necessary human resource are honed by using education and health as the human capital. Human capital uses resources like land and physical labor to increase the value of human capital. Investment in human resources results in the loose formation of human capital. Hence, investment in human capital can guarantee high returns for the future. Examples of countries that have invested heavily in human resources include Japan, despite having less natural resources, is one of the most developed nations. Human capital helps countries become more productive and increases their respective return on investment. Introduction to people as resource. रिसोर्स एक संसाधन के रूप में लोग जब हम कहते हैं तो किसी देश के मौजूदा कौशल और क्षमताओं के संबंध में कार्यबल को संदर्भित करता है। मतलब क्या कि लोग जो काम करते हैं उससे उस देश के संसाधन उस देश का संसाधन लोगों के कार्य पर निर्भर करता है। किसी देश के नागरिक उसकी संपत्ति होते हैं। यह तब होता है जब शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव पूंजी के रूप में उपयोग करके आवश्यक मानव संसाधन के कौशल का सम्मान किया जाता है। मानव पूंजी के मूल्य को बढ़ाने के लिए भूमि और शारीरिक श्रम जैसे संसाधनों का उपयोग करती है। मानव संसाधनों में निवेश के परिणाम स्वरूप मानव पूंजी का निर्माण होता है। इसलिए मानव पूंजी में निवेश भविष्य के लिए उच्च रिटर्न की गारंटी दे सकता है। मानव संसाधनों में भारी निवेश करने वाले देशों के उदाहरणों में जापान शामिल है। कम प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद जापान सबसे विकसित देशों में से एक है। मानव पूंजी देश को अधिक उत्पादक बनने में मदद करती है और निवेश पर उनके संबंधित रिटर्न को बढ़ाती है। एक संसाधन के रूप में मानव की जब हम बात करते हैं तो अभी आपने पढ़ा उसमें आपको समझ में आ गया होगा कि लोग भी उस देश का एक संसाधन होते हैं और इसीलिए उन्होंने आपके इसमें जापान का उदाहरण दिया है कि जापान में नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संसाधन कम होने के बावजूद भी लोगों की मेहनत से वो देश आज अधिक उत्पादन वाला देश बन गया है। या आप लोगों ने पहले इतिहास में भी पढ़ा है कि नागासाकी और हिरोशिमा
ये जो दो शहर थे जापान के, ये पूरे वर्ल्ड वॉर में एटम बॉम्ब उनके ऊपर गिरा दिया था और पूरे जो ये दो उनके मुख्य शहर थे वो पूरी तरह से ख़त्म हो गए थे। और जापान के लोगों ने अपनी मेहनत से इन पूरे दो शहरों को दोबारा उन्होंने अब उनका निर्माण किया। और ये इस बात का सबूत है कि लोग संसाधन के रूप में देश की तरक्की कैसे कर सकते हैं। इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। In this chapter, people as resources and economic activities refer to those activities undertaken by people for financial gains. These activities are done for monetary benefits by people. Monetary benefits means to earn money. Most often, people employed in economic activities, including business persons, lawyers, doctors, engineers, drivers, etc. Any action done to help the beneficiary monetarily can be categorized as an economic activity. On the other hand, the economics chapter class 9 NCERT solutions chapter 2 also briefly highlights non-economic activities. These are the activities do not produce any monetary gain to the person doing it. Money is not the driving force behind such acts. Examples of non-activities include worshipping, cleaning, household, etc. जब हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, तो हिंदी में हम उसको कहते हैं आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियाँ। नाम से ही पता चलता है, आर्थिक गतिविधि मतलब जिससे लोग पैसा कमाते हैं वो हो गई आर्थिक गतिविधि, और जिससे काम करने के बाद पैसा नहीं मिलता है उन गतिविधियों को हम कहते हैं गैर आर्थिक गतिविधियाँ। आगे हम देखेंगे कि जब हम पुरुष और स्त्री में भेद करते हैं या उनके कामों में जब भेद करते हैं, तो गृहिणी के रूप में जो स्त्रियां काम करती है तो उनको गैर आर्थिक गतिविधियों में गिना जाता है। आगे पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ये जो आर्थिक गतिविधियां होती है लोगों के द्वारा मौद्रिक लाभ के लिए की जाती है, और अक्सर आर्थिक गतिविधियों में कार्यरत लोगों में व्यवसायी, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, ड्राइवर आदि शामिल होते हैं। लाभार्थी को आर्थिक रूप से मदद करने के लिए किए गए किसी भी कार्य को NCERT समाधान अध्याय 2 में भी संक्षेप में गैर आर्थिक गतिविधियों पर प्रकाश डालता है। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो इससे करने वाले व्यक्ति को मौद्रिक लाभ नहीं देती है। जैसे मैंने आपको अभी बताया, इस तरह के कृत्यों के पीछे पैसा प्रेरक शक्ति नहीं है। गैर आर्थिक गतिविधियों के उदाहरण में पूजा, सफाई, घर के काम आदि शामिल है, क्योंकि पूजा करने से हमें पैसा नहीं मिलता है, घर साफ हम करते उससे हमें पैसा नहीं मिलता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, गैर आर्थिक गतिविधियाँ। पर आप अगर देखोगे बेटा तो गैर आर्थिक गतिविधियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। भले ही उसमें पैसा ना मिले, उसमें मौद्रिक लाभ ना हो, फिर भी ये महत्वपूर्ण होती है। क्यों? क्योंकि अगर हम साफ सफाई नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे, है ना। आ रही ना बात समझ में। तो भले ही इनसे पैसा नहीं मिलता हो पर इनका अपना महत्व है। Now we will see division of economic activities between men and women. If you want to understand what do you mean by people as resources, you have to follow the categorization of commercial activities between men and women. For generations, tasks for men and women have been divided for them. Traditionally, men are perceived as the breadwinners.
Here the breadwinners means they earn money for roti, while women are seen as homemakers as they look after the kids, family and the household. Men go out into the world, work and bring home money to run a house, while women indulge in household activities and raise children. While the man's work is categorized as economic, women's tasks are often classified as non-economic activity. पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक गतिविधियों का विभाजन। यदि आप समझना चाहते हैं कि संसाधनों के रूप में लोगों से आपका क्या तात्पर्य है, तो आपको पुरुषों और महिलाओं के बीच व्यावसायिक गतिविधियों के वर्गीकरण का पालन करना होगा। जैसे पीढ़ियों से आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में औरतें जो है वो काम नहीं करती थी, घर से बाहर नहीं निकलती थी। सारी घर की जिम्मेदारी कौन संभालता था? पुरुष। और महिलाओं का काम था घर संभालना। आजकल आपने देखा होगा जैसे जैसे समाज आधुनिक होता जा रहा है, स्त्रियां भी अब घर से बाहर निकलकर घर भी संभाल रही है और बाहर का काम भी संभाल रही है। अब आज के युग में महिलाएं सिर्फ गृहिणी नहीं रही, उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है। कैसी जिम्मेदारी बढ़ गई है? घर का कामकाज भी करना और नौकरी भी करना। और इसीलिए देखो आपके इसमें उन्होंने दिया है, पीढ़ियों से पुरुषों और महिलाओं के लिए कार्यों का विभाजन किया गया है। परंपरागत रूप से पुरुषों को रोटी कमाने के रूप में माना जाता है, जबकि महिलाओं को गृहिणी के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वे बच्चों और परिवार और घर की देखभाल करती है। पुरुष काम करते हैं और घर चलाने के लिए घर में पैसा लाते हैं, जबकि महिलाएं घर के कामों में लिप्त होती है और बच्चों की परवरिश करती है। जबकि पुरुषों के काम को आर्थिक रूप में वर्गीकृत किया जाता है और महिलाओं के कार्यों को अक्सर गैर आर्थिक के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। समझ में आ रहा है क्या बेटा? अगर आपको नहीं समझ में आए तो मुझे आप पूछ लेना, पर इसे पढ़ के नहीं अगर आपको समझ में आए तो मैं फिर से आप लोगों को बता देती हूँ कि पुरुषों और महिलाओं के बीच आर्थिक गतिविधियाँ जो हम पढ़ रहे हैं, ये पहले ऐसा होता था कि पुरुष काम कर रहे हैं और घर की जिम्मेदारी औरतें संभाल रही है। पर आजकल आपको ये भी देखने को मिलता है कि आजकल कुछ पुरुष भी घर संभाल रहे हैं और महिलाएं नौकरी कर रही है, क्योंकि जो पुरुष काम नहीं कर सकते या जिनका एक्सीडेंट वगैरह हो गया है या जिनके हाथ या पैर काम नहीं करते, ऐसे घरों में आपने देखा होगा कि औरतें घर चलाती है और पुरुष घर की देखभाल करते। भले ही उनसे काम नहीं हुआ हो, पर वो घर में रह के घर की देखभाल करते हैं। Classification of economic activities. To better understand people as resources, the classification of economic activities need to be understood. Economic activities are broadly classified as primary sector. Another name of primary sector is agriculture sector. This sector includes economic activities like agriculture, forestry, pisciculture, animal husbandry, farming, beekeeping, poultry farming, mining, etc. Secondary sector is also known as manufacturing sector, and it is also known as industrial sector. The manufacturing of all small and big goods falls under this category. The secondary sector also includes construction activities. And third is tertiary sector. This is known as service sector. All service providers fall under the tertiary sector. This includes
Economic activities like transport, banking, restaurants, communications, health, tourism, etc. I again explain you classification of economic activities. And first is primary sector, and primary sector is known as agriculture sector. In another word, we can explain this sector as all the things which are given by the nature, and there is no efforts for human. All these things are given by the nature. They are included in primary sector. And the things given by the nature are transformed by the main, and that is this work is done in the secondary sector, and this activity is done through industries, and therefore this secondary sector is also known as industrial sector. And the most important is tertiary sector, and it is also known as service sector. Why this is known as service sector? Because directly or indirectly this sector helps primary sector and secondary sector. For example, agriculture is in the primary sector, but if the farmer is not educated, then agriculture is not possible. Because in modern age there are new instruments are invented by the people to smooth working of agriculture, and if the farmer is educated, then he can do primary sector very well. Understand बेटा? आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण लोगों के संसाधन के रूप में बेहतर ढंग से समझने के लिए आर्थिक गतिविधियों के वर्गीकरण को समझने की आवश्यकता है। आर्थिक गतिविधियों को हम मोटे तौर पे इस प्रकार वर्गीकृत करते हैं। प्राथमिक क्षेत्र, जिसका दूसरा नाम है कृषि क्षेत्र, या कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं? तो इस क्षेत्र में कृषि, वानिकी, मछली पालन, पशुपालन, खेती, मधुमक्खी पालन, मुर्गी पालन, खनन आदि आर्थिक गतिविधियां शामिल है। माध्यमिक क्षेत्र को कहते हैं विनिर्माण क्षेत्र, और इसी को दूसरा नाम है इंडस्ट्रियल क्षेत्र। इंडस्ट्रीज यानी क्या? कंपनीज। सभी छोटे और बड़े सामानों का निर्माण इस श्रेणी में आता है। द्वितीय क्षेत्र में निर्माण गतिविधियां भी शामिल है। तृतीय क्षेत्र को कहा जाता है सेवा क्षेत्र। सभी सेवा प्रदाता तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसमें परिवहन, बैंकिंग, रेस्टोरेंट, संचार, स्वास्थ्य, पर्यटन आदि जैसी आर्थिक गतिविधियां शामिल है। मैं इसको फिर से आप लोगों को समझाना चाहूँगी बेटा कि आपके इसमें लिखा है प्राथमिक क्षेत्र, है ना, ये कृषि क्षेत्र। इसको हम अपने शब्दों में समझने के लिए इसको दूसरे तरीके से भी हम समझ सकते हैं कि प्रकृति ने हमें जो जो चीज़ें प्रदान की है वो सारी चीज़ें इस प्राथमिक क्षेत्र में हम सम्मिलित करते हैं। देखो आप, जैसे वानिकी यानी क्या? जंगलों से भी हमें क्या मिलते हैं? बहुत सारी चीज़ें हमें मिलती है। मछली भी हमको कहाँ से मिलती है? पानी से। ये भी किसने दिया है हमको? प्रकृति ने। पशुपालन, पशु भी हमको कहाँ से मिले हैं? प्रकृति से। आ रही ना बात समझ में? तो जितनी भी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली है उनको हम शामिल करते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। दूसरा है माध्यमिक क्षेत्र, इसी को दूसरा नाम है द्वितीय क्षेत्र, और इसी को कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र। अब नाम से ही पता चलता है विनिर्माण मतलब क्या? जो चीज़ हमारे को प्रकृति ने दी है उसको दोबारा मनुष्य के उपयोग के लिए बनाना कहलाता है विनिर्माण क्षेत्र। और तीसरा है तृतीयक
क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। अब ये सेवा क्षेत्र इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को मदद करता है। कैसे? तो अगर किसान जो है वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसे कैसा पता चलेगा कि भाई आजकल खेती में कितने नए नए प्रयोग हो रहे हैं और नए नए प्रयोगों का उपयोग करके वो अपना उत्पादन बढ़ा सकता है। तो ये किसान जो है वो कब होशियार बनेगा? जब तृतीय क्षेत्र के यानी प्रोफेसर्स या टीचर्स या कॉलेजेस में उनको बताया जाएगा, कृषि कॉलेजेस में या कृषि में उनको बताया जाएगा कि नए नए प्रयोग किस तरह से किए जाते हैं ताकि उनका उत्पादन बढ़े। तो भले ही हम ये समझते हैं कि पुराने जो किसान हैं वो इस चीज़ को नहीं समझते होंगे, पर उन्होंने अपने बच्चों को ज़रूर क्या किया होगा, पढ़ाया होगा। और उनको पढ़ाने का काम कौन करेगा? तो तृतीय क्षेत्र। और तृतीय क्षेत्र कोई छोटा क्षेत्र नहीं है बेटा। देखो इसमें कितने सारे चीज़ें हैं, परिवहन है, बैंकिंग है, रेस्टोरेंट्स है, संचार है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, ये सब किस में शामिल होते हैं? तृतीय क्षेत्र में। और अगर हम इसको गहराई से पढ़े तो परिवहन भी आप लोगों को पता है 3 भागों में बटा हुआ है। स्थल में चलने वाला ये, फिर पानी में चलने वाला, फिर हवाई जहाज़ जो हवा में उड़ते हैं वो, इन तीनों का परिवहन जो है इनको हम शामिल करते हैं परिवहन में। बैंकिंग भी आजकल आपने देखा होगा कि बैंक की वजह से कितनी सुविधाएं लोगों को होती है।